اس لیے کہ قرآن چیلنج بن کر کے آیا اور عربوں کو چیلنج دیا قرآن نے. آج سننے میں یہ آتا ہے کہ امریکہ پوری لابی کو لے کر کے قرآن کا مقابلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے. الفرقان نام سے انہوں نے کتاب لکھی, الفرقان نام سے, اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش بھی کیا. چائنا میں بھی ہم نے سنا, کیونکہ چائنا کی عادت ہے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ بنانے کی. سوچا ہوگا کہ قرآن کا بھی ڈپلیکیٹ بنا دیں, اور امریکہ نے اپنی پوری لابی کو لے کر کے الفرقان, آپ کو پتا ہے فرقان؟ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے, جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں, مستقبل کی خبریں بھی بتائی ہیں, جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. تقریباً سب خبریں اس کے اندر موجود ہیں, اور کبھی کوئی خبر آج تک اس کی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکی. جو قرآن نے گزشتہ خبروں کی ہمیں باتیں بتائی ہیں, اس میں سے بھی کہیں کوئی ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں آئی. یعنی سائنس کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ جتنی خبریں قرآن نے بیان کی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی. اور ایک بات, جو آنے والے معاملات کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے ان میں بھی آپ دیکھ لینا زندگیاں باقی رہی تو ایک بھی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہارے پاس ایسی کتاب موجود ہے جس کے اندر ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں, اور تمہاری ہدایت بھی ہے, تمہارے لیے شفا بھی ہے, تمہاری پوری زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے, دستور حیات بھی ہے, تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن, لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک میں؟ اچھا, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایسا چیلنج فرما دیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتاب ہوتی تو اس میں تم زبردست اختلاف دیکھتے. یعنی پہلے کچھ اور بیان کیا, بعد میں کچھ اور بول دیا. 6666 آیتیں اور ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئی, 23 سال لگ گئے, 23 ایئرس نازل ہونے کے لیے قرآن پاک کو. ان 23 سال میں یہ 6000 سے زیادہ جو آیتیں نازل ہوئی, ایک آیت مجھے نکال کر کے بتا دو کہ قرآن میں شروع میں ایسا کہا گیا, آخر میں ایسا کہا گیا, دونوں آیتیں ٹکراتی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی ہوتی تو ضرور اس میں ٹکراؤ تم کو مل جاتا. یہ اللہ کی کتاب ہے جو بالکل مقدر کے اعتبار سے بنایا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کو میتھمیٹک کے حساب سے بھی تم پرکھ کر کے دیکھ لو گے تو قرآن کی کوئی آیت حساب کے اعتبار سے بھی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں نظر آئے گی. یہ قرآن میں غور و فکر کرنے والے جو میتھس کے ماہرین ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے اس کی آیتوں کو کاؤنٹ کر کے, اس کے حروف کو کاؤنٹ کر کے دیکھا کس سورے میں کتنی آیتیں ہونا چاہیے اتنی آیتیں آ گئیں, کس آیت میں کتنے حروف ہونے چاہیے وہ حروف آ گئے. حساب کرنے والے کیلکولیشن کر کے تھک گئے, ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں نظر آیا. اسی لیے تو میرے عزیزو ایک چھوٹی سی سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور ہیں بھی 3 آیتیں, اس میں صرف 3 آیتیں. آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے, چند حروف ہیں, چند آیتیں ہیں, لیکن جو عربی داں ہے, جو عربی کے نشیب و فراز کو جانتا ہے, وہ اس کی حکمتیں جانے گا کہ اس کو کیسے پیرویا گیا ہے 3 آیتوں میں, کیا کیا معنی بیان کر دیے گئے, یہ عرب ہی جان سکتے ہیں. اسی لیے اس سورے نے ایسا چیلنج کر دیا تھا عرب میں. پہلے عرب میں دستور تھا جو بڑا شاعر
जो सबसे बड़ा शायर होता और उसका शेर सबसे हाई लेवल का होता, उसके मुकाबिल में किसी का शेर नहीं होता, तो उसको चैलेंज करने के लिए वो खाने काबा के दरवाजे के पास लाकर लटका देता। वो शायर लटकाता, अगर उसका कोई जवाब लिख देता तो पहले वाले वो शेर उतार लिए जाते, दूसरा वाला लगा दिया जाता, वो चैलेंज रहता। फिर दूसरा, अगर इसका भी मुकाबला करने वाला कोई तीसरा शायर आ जाता और उसके शेर अच्छे हो जाते, उसके लिए पूरी पैनल बैठती शायरों की, बड़े बड़े फसीहों की, वो लोग फैसला करते। एक आदमी फैसला नहीं करता, पूरा अरब मिलकर फैसला करता कि किसका शेर सबसे उम्दा है। फिर वो उतार दिया जाता। ये चलता रहता था, खाने काबा के पास लटकाए जाते थे। जब ये सूरह नाजिल हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये 3 आयतें लिखवा करके खाने काबा पर लटका दिया, जाओ इसको लटका दो। जब ये लटकाया गया, 3 ही आयतें थी, जाहिर सी बात है अब जवाब आना चाहिए। अब इससे बेहतर जो लिख करके लाएगा तब ये उतारा जाएगा। तो सारे शायर आए और उनसे बन नहीं सका कि इतनी छोटी एक 3 आयतों में समंदर को पिरो दिया जाए, इतने बड़े माने उसके अंदर रख दिए जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे अजीजों, आप तो गौर व फिक्र करते नहीं कुरान में, तो समझ में कहां से आएगा कि अरबी की बलागत क्या होती है, फसाहत क्या होती है, अरबी के अंदर बारीकियां क्या होती हैं। ये अरबी पढ़ने वाला समझ जाएगा। तो बहुत शायरों ने देखा मुकाबला करने की, आखिर में बहुत बड़े शायर को बुलाया, सारे लोगों ने मिल करके इसका जवाब लिखो। तो उसने बहुत गौर व फिक्र किया। वो बात करता तो शेर में बात करता, अगर किसी से खैरियत भी पूछना होता उसको तो वो फसी शेर में पूछता, इतना माहिर था। जब वो आया खाने काबा पर, ये 3 आयतें लटकी हुई देखा, तो उसने अपनी जानिब से एक और एडिशन उसमें लगा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयतें थी। उस अरब के बड़े शायर ने जिसको मुकाबले के लिए बुलाया था, उसने नीचे लिख करके उस पे लटकवा दिया, मा हाजा कलामुल बशर। कहा कि ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, बशर इंसान, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, इसका जवाब मुमकिन नहीं है। वो दिन आखिरी था जो खाना काबा के दरवाजे पर लटकाया गया, उसके बाद फिर कभी नहीं लटकाएगा। लटकने वाला मामला खत्म ही हो गया, इसलिए कि कुरान चैलेंज बन करके आया और अरबों को चैलेंज दिया कुरान ने। आज सुनने में ही आता है कि अमेरिका पूरी लॉबी को लेकर के कुरान का मुकाबला करने बैठा हुआ है। अल फुरकान नाम से इन्होंने किताब लिखी, अल फुरकान नाम से, और उसको मशहूर करने की कोशिश भी किया। चाइना में भी हमने सुना, क्योंकि चाइना की आदत है हर चीज का डुप्लीकेट बनाने की। सोचा होगा कि कुरान का भी डुप्लीकेट बना दें, और अमेरिका ने अपनी पूरी लॉबी को लेकर के अल फुरकान, आपको पता है फुरकान, इतने सारे मुसलमान है, कहां बात है, वो पता नहीं कहां लिखा और कहां छपा और कहां छुपा, लेकिन कुरान का मुकाबला नहीं कर सका। मेरे अजीज, ये वो अमेरिका जहां तुम्हारी सुबह और शाम इंग्लिश में होती है, जहां तुम्हारी जुबान और तुम्हारी बोलचाल अरबी से जरा बराबर भी वाकफियत नहीं रखती, तुम सारी जमीयत को लेकर के कुरान का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। खुदाए अजीजो जब्बार ने उस जमाने में जब इसी जबान के माहिरीन थे तब चैलेंज किया था कि लिख करके लाओ। वो बड़े बड़े जो अरबी दां थे वो नहीं ला सके, तो फिर इंग्लिश दान जो है वो अरबी का मुकाबला करने की कैसे सकत रख सकते हैं। बनाओगे तुम, हो सकता है इस तरह की बहुत सारी किताबें बना लोगे, लेकिन उन किताबों का हाल वही होगा जो और दूसरे नावल और दीगर कहानी की किताबें हैं, बहुत सारी आती हैं। शेक्सपियर की किताबें भी आई और चली गई, बहुत सारे नावल भी आते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं और चली जाती। तुम किताब लिख तो दोगे, लेकिन इसका हिफ्ज करने वाले करोड़ों हाफिजों को कहां से पैदा करोगे, और इसकी तिलावत में मजे लेने वाले कहां से पैदा करोगे। अजीजा ने गिरामी, कुरान सिर्फ ये दिखने वाले वरक का एक गत्था नहीं है, इसके अंदर कशिश है,
इसके अंदर खिंचाव है। बरसों से तुम कुरान सुनते आ रहे हो, कभी आज तक आकर के इमाम साहब से नहीं कहा कुछ दूसरा भी पढ़ो, नमाज में वही पढ़ते हो? कभी नहीं कहा हर नमाज में सूरह फातिहा ही पढ़ते हो? आप सुनते भी हैं और मजा भी लेते हैं, इसलिए कि कुरान 14 सदियां क्या 14,000 साल भी हो जाए पुराना नहीं होगा। इसकी जो कशिश है वो तुम कहां से ला सकोगे? इसका जो खिंचाव है वो कहां से ला सकोगे? नहीं ला सकोगे। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अगर ये दूसरे की तरफ से होता तो तुम फिर इसमें बहुत ज्यादा टकराव भी देखते। यहां कुछ और बोल रहा है, वहां कुछ और बोल रहा है। इसलिए कि मेरे पास स्टडी किया हुआ थोड़ा बहुत ही मेरा मुताला होगा, जो हिंदुओं की किताबें भी हैं, ऋग्वेद है, महाभारत वगैरह के सिलसिले में जो चीजें किताबें मिलती हैं, रामायण है, गीता है और बहुत सारी किताबें, इन किताबों में खुद कई जगहों पर इख्तिलाफ पाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं कहूं तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होगी, बल्कि इन किताबों को पढ़ने वाले, इनकी गाइड लिखने वाले जो बड़े बड़े पंडित हैं, उनमें से ही बाज पंडितों ने यह दावा किया है कि ये किताबों का लिखने वाला कौन है हमको मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं। बाज ने बाज की तरफ निस्बत की, बाज ने बाज की तरफ निस्बत की, उन्हें खुद इख्तिलाफ है। और इख्तिलाफ कैसे नहीं होगा? जाहिर सी बात है उसकी हिफाजत नहीं हो सकी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बयानात आ गए। इसी तरह बाइबल की बात आप ले लें, इंजील जो थी वो अल्लाह की किताब है, लेकिन बाद में ईसाइयों ने उसमें जो खुरद बुरद किया है वो आज साफ नजर आता है। कुछ पुरानी इंजील को उठाएं तो कुछ और दिखता है, नई इंजील को उठाएं तो कुछ और दिखता है। उसी सफ़े पर उसी लाइन में पहले कुछ और ऑर्डर दिख रहा है, आज कुछ और ऑर्डर है। तो इससे पता चलता है कि एक का लिखा हुआ नहीं है, इसमें खुरद बुरद हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया से, 14 सदियों पहले वाला कुरान जो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों से लिखा हुआ था, सहाबी रसूल है, दामाद रसूल है, कुरान खुद अपने कानों से सुना है रसूल की जुबान से, उनके हाथों से उनके जमाने में लिखा हुआ कुरान आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तुर्की के म्यूजियम में मौजूद है कुरान। आज का छपा हुआ कुरान और 14 सदियों पहले वाला कुरान जाओ मिला करके देख लो, एक आयत का भी फर्क आ जाए, आयत तो दूर की बात मेरे अजीज, एक हर्फ का भी फर्क आ जाए तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। तुम मिलाओगे आज भी उस 14वीं सदी वाले पुराने कुरान को, तुम्हें समझ में आएगा हर्फ ब हर्फ वही है। इसलिए कि कुरान अल्लाह ने मौलवियों के हाथ में नहीं दे दिया कि तुम हिफाजत करो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने इसको उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करें। हाँ, ये सिर्फ जो है हम लोगों के हाथ की बात हो नहीं है कि कुरान जो है मुसलमानों को दे दिया गया, उलमा को दे दिया गया, हाफिजों को दे दिया गया कि तुम हिफाजत करते रहो। नहीं, अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा।